Good evening, everyone. This is Darshan Parikh, and I welcome all of you to this panel discussion, which has been hosted under the flagship program of Project Masoom of CII Ahmedabad chapter. I welcome Mr. Dhruv Desai, Chair via Ahmedabad, Mr. Tejas Shah, Co-Chair via Ahmedabad, are all the panelists, Mr. Uttam Sharma, Ms. Beenal Patel, uh, Ms. Mini Joseph, most importantly, all the students, teachers, and parents of DPS Bhopal School. I welcome all of you. Now, before going ahead, I would like to share a few basic facts to understand why this panel discussion is required. So, as per the study, over 50% of the kids in India are being affected by physical, emotional, or sexual abuse. And it has been observed that over 90% of those 90% of the cases, the abuser are a known person or a family member or trusted people, and over 70% of those cases are never reported to any institute or not even to the parents. So with these initial numbers, I would request Mr. Tejas Shah to take over and give his welcome address. Mr. Tejas. Hello, good evening, everyone. Respected principals, vice principals, teacher, staff, support team, parents, and dear students. I am Tejas Shah. I am co-chair of YI, Young Indians. It's a group of entrepreneurs ranging between the age of 21 to 45, and they work for the project of the nation building. So YI is the youth wing of CII. CII is an organization which is more than 125-year old. So we can say before the independence, this setup was there. And YI and CII both are non-profit organizations. Now, what YI does? So YI is spread across 55 cities in India. So all major cities have YI branch, YI chapter. So all YI chapters work on 5 projects throughout the year. So just to brief a few projects, that is a road safety. First project is a road safety. So road safety where we create awareness about the traffic rules. There we have an initiative called HNOP, Horn Not Okay Please, and why unnecessary honking should be avoided. And we also have a initiative called Chota Cop, where we go to the school and ask each children to become a Chota Cop of their own family. Then we work on a project called Accessibility, where we work to resolve the life or uplift the life of differently abled people. Then we also have a project called Climate Change. I don't think I need to explain more about the climate change because it's a need of an hour that we all act appropriately to save our environment. Then we also have project called Gift and Organ. So one person can save the life of many even after his or her death. So we create an awareness how one can donate the organ and how important it is to donate the organ. And the fifth project that we run, that is Project Masoom. Under the Project Masoom, we are conducting this seminar. Project Masoom is a project where Ahmedabad chapter is leading across India in all YI chapters, and it has worked phenomenal work. The YI team and Project Masoom team has worked phenomenal work. Till today, we have already trained more than 570 government teachers on this. We have also trained more than 490 private school teachers and the volunteers of different NGOs who are also working similarly on this line on this project. We have already impacted more than 14,200 students, school students, and sensitized about the safe touch and unsafe touch. And we have already done more than 237 sessions with the schools. So this would be around 238 sessions with the DPS school. So once again, I thank you, the school management, for giving us an opportunity to create an awareness under the Project Masoom.
And if given an opportunity, we would also like to give more sessions on different projects, which I already discussed. Thank you all. Over to you, Darshan. Thank you, Tejas. Thank you for kindly briefing the details of Project Masoom. And as you rightly mentioned, there is a need of an hour for the awareness among the kids and the parents. Moving forward, I would like to introduce our panelist, I'll start with Mr. Uttam Sharma. Uttam Sharma is a regional manager of Times Foundation. Times Foundation was founded in year 2000, which primarily focuses on disaster management, skill development, women empowerment, and spiritual wellness. And Times Foundation is quite known for their project called Pasti Ki Masti, through which they have supported education of over 800 school girls which were dropped out from the schooling. So they had supported those kids. And Uttam Bhai has been training teachers, parents, and kids over past 4 years in terms of child abuse. Thank you, Uttam Bhai, for joining us, and your opening remarks, please. Thank you so much. I have a old association with DPS Bhopal. Some years back, I worked on one more project with DPS Bhopal, जहाँ हम slums के बच्चों को यहाँ admission कराया था under the name Vedic, and I see those children, मतलब वो काफी अच्छी जगह पे पहुंचे हैं वो बच्चे जिनको DPS Bhopal ने पढ़ाया था. So thank you so much for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir. We are glad to hear that. Moving forward, our second panelist, Ms. Binal Patel. Binal Ben is part of Childline India Foundation. Childline India Foundation is a nodal agency under the Union Ministry of Women and Child Development, acting as the parent organization for setting up and managing and monitoring Childline, that is 1098 services across the country. And there are basically Childline facilities available across 598 cities, which covers almost 83% of the India. And Binal Patel is a coordinator for Childline Ahmedabad, and she has been training kids, parents, and teachers over past 7 years. And બિનલ આપને સંભળાય છે? મને નથી સંભળાતું. Ma'am, I think there is some technical issue. Yeah. hello. Yeah, we Yes, can hear you now. Yes, you are audible. So, sorry, I was disconnected. So, I would request Binal Ben to give their initial thoughts, and I would kindly request her to introduce our third panelist, Miss Minnie Joseph, Madam, as well. दर्शन भाई थैंक यू. उनका परिचय देना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मिनी मैम जो है वो एसीपी है. यहाँ अहमदाबाद की जो क्राइम ब्रांच टीम है उनकी विमेन सेल है, उनके वो एसीपी है. और ये बहुत ही अच्छे उम्दा अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी जो बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं. तो ये जो पॉक्सो एक्ट जो है, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए जो एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, उनके इम्प्लीमेंट करने के लिए अहमदाबाद के वो नोडल ऑफिसर्स भी है. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो अहमदाबाद सिटी पुलिस का है, उनके भी वो नोडल ऑफिसर्स है. तो ऐसे ही उम्दा अधिकारी आज हमारे बीच में है.
उसका हम सबको गर्व है। Wonderful. Thank you, Mini Madam, for sparing the time. Now, moving forward without taking much of your time, we shall directly move to the panel discussion. And I would request Uttam Bhai to give us your basic thoughts on what is child abuse and what are the types of child abuse. Okay, I'll explain in very simple term. I'll not use some technical terms because बच्चे भी बैठे हुए हैं तो बच्चों को समझ में आए उस तरीके से मैं अगर समझाऊं तो जब बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जब उनको इस तरह से हैरेस किया जाता है, तो उसको हम बेसिक चाइल्ड अब्यूज कहते हैं, है ना। समाज में कोई भी बुराई होती है ना तो हम लोग ब्लेम कर देते हैं कि भाई एजुकेशन का लेवल कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पुराने जमाने से लेके अभी तक हम जो चल के आए हैं, एजुकेशन का लेवल तो काफी बढ़ गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथ साथ में जो समाज के अंदर ये बुराई है, ये बीमारी है, ये भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। आजकल हम नए नए केसेस देख रहे हैं चाइल्ड अब्यूज के, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। बहुत ही अच्छा सेशन आज रखा हुआ है जिससे पेरेंट्स को, बच्चों को डेफिनेटली काफी बेनिफिट होगा। चाइल्ड अब्यूज के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एक हो गया फिजिकल अब्यूज। अब फिजिकल अब्यूज होता है जहां हम बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को नोच लिया, बच्चों को काट लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 80% ऑफ द केसेस ये अपने घर में ही होते हैं, बाहर दूर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये केसेस हमने घर में ही देखे हुए हैं, मोर देन 80%। सेकंड ऑप्शन हो जाता है कि इमोशनल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज बच्चों के साथ कहीं भी हो सकता है, घर में तो होता ही है, माँ बाप उसे 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, होमवर्क नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा, उसको बेचारे को अंदर बंद कर दिया है, दैट इज ऑल्सो इमोशनल अब्यूज, है ना। लेकिन बच्चों का रिजेक्शन, अपने पीयर ग्रुप के साथ जब बच्चा खेलने जा रहा है वहां उसको रिजेक्शन कि भाई तने नहीं रमाड़ू, नहीं खिलाऊंगा तुझे, वो भी दैट इज ऑल्सो इमोशनल अब्यूज। उसको गलत नाम से चिढ़ाते हैं, बुलिंग करते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है बच्चों को, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इमोशनल अब्यूज। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज। और अगर इसे बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म्स में कहा जाए तो व्हेन एन एडल्ट टीनेजर और ए चाइल्ड, व्हेन एन एडल्ट टीनेजर और ए चाइल्ड uses their power or authority to involve the other child in sexual activity, वो अपने पावर को, अपने रॉब को यूज करके और किसी बच्चे को सप्रेस करता है और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज सेक्सुअल अब्यूज। एंड लास्ट फॉर्म एक होता है निग्लेक्ट का। अब ये निग्लेक्ट क्या होता है कि बच्चे को उसकी जो बेसिक नीड्स है उससे अगर हम दूर रखते हैं। बेसिक नीड्स क्या होती हैं कि उसके डेवलपमेंट में जो भी इन्वॉल्व होती हैं, उसका बेसिक खाना, उसका रहना, उसके कपड़े, उसका हाइजीन, उसको मेडिकल अटेंशन की जो जरूरत है, अगर वो बच्चे को हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो दैट इज नोन एज निग्लेक्ट। तो ये 4 फॉर्म्स डिफरेंट टाइप के हैं चाइल्ड अब्यूज के। और फिजिकल अब्यूज के अंदर जैसा मैंने कहा कि एक सर्वे हुआ था, उसमें 69% बच्चे पाए गए हैं जिनको फिजिकल अब्यूज हुआ है। और एक अलार्मिंग पॉइंट और है कि 54% इसमें से लड़के थे। तो थिंक इट ओवर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for giving the basic idea about what is child abuse. Binalben, if you can just elaborate what is sexual abuse. उत्तम भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से अब्यूज के अलग अलग फॉर्म है उसके बारे में बात की। मैं पर्टिकुलर सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात कर रही हूँ। तो सेक्सुअल अब्यूज जो है, आगे उत्तम भाई ने जैसे कहा कि ये जो अब्यूज के फॉर्म है वो सभी घर में या पड़ोस में या आसपास में या हमारे ही आसपास में पाए जाते हैं। ऐसे ही सेक्सुअल अब्यूज भी ऐसा ही है ना। और सेक्सुअल अब्यूज एग्जैक्टली होता क्या है, कई बार हमें पता ही नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज क्या है। तो जैसे उत्तम भाई ने बताया कि बच्चा है, वो बच्चे के जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट होते हैं वहां पे कोई बच्चे को टच करने की कोशिश करता है, या बच्चे को जो कोई एडल्ट है उनके प्राइवेट पार्ट टच करने को बच्चे को बोला जाता है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और बॉडी के 4 पार्ट्स जो रेड जोन कहते हैं, जो प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट पार्ट कहते हैं, तो वहां पे अगर कोई छू रहा है तो वो भी ये सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। ये जो है वो सारे टच्ड अब्यूज है, लेकिन नॉन टच्ड अब्यूज भी रहते हैं जिसमें
बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजना है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया और जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत यूज टू हो गए, एप्लीकेशन से और इन सारी चीजों से। तो ये हमने देखा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड ये सारी केसेस भी बहुत बड़े हैं, जहाँ पे बच्चों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट उनको भेजा जाता है किसी ना किसी एप्लीकेशंस के माध्यम से या कुछ अलग तरीकों से। तो ये भी है जो नॉन टच और नॉन वर्बल जो है वो अब्यूज, जिसको सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में उसको लिया जाता है। मिनी मैम आगे उसमें बहुत सारा बताएंगे कि कैसे कैसे केसेस इसमें आते रहते हैं। तो ये जो है वो अब्यूज के फॉर्म में, सेक्सुअल अब्यूज में डिटेलिंग ये था। दर्शन भाई। Yes, madam. So, going forward, what are the disbeliefs associated with the child abuse? For example, I am aware that it is general belief that लड़कियों का abuse ज़्यादा होता है. So, what are your thoughts on that? बिल्कुल, हमने बहुत सारे डिसबिलीव रखे हैं कि लड़कियों का ही अब्यूज होता है, लड़कों के नहीं, जैसे उत्तम भाई ने आगे बताया। वैसे सेक्सुअल अब्यूज जो है वो लड़कियां और लड़कों के दोनों के ही बराबर के होते हैं। लेकिन हाँ, हमारे सिस्टम में, सोशल सिस्टम एक टैबू जैसा है ना, कि लड़कियां इजीली किसी भी बात को कह देती है, बात कर देती है, लेकिन लड़के इन सारी चीजों को जल्दी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं पे हमने ऐसा भी एक टैबू बना के रखा है कि लड़के के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इसीलिए भी जाके लड़का किसी फैमिली या फ्रेंड या किसी के साथ शेयर नहीं करता है। लेकिन एक सर्वे जो 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, तो उसका जो रिजल्ट आया वो भी बहुत चौंकाने वाला था। तो उस रिपोर्ट में ये था कि लड़कियों की तरह लड़के भी इतने ही अब्यूज्ड होते हैं। और हम अगर केसेस को भी देखने जाएंगे तो ये केसेस भी ज्यादा है। हालांकि ये केसेस लड़कों के जो मैं बोल रही हूँ वो रिपोर्ट कम होते हैं। और इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने पर्सनली फील किया है कि लड़कियों के साथ अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं ना, तो वो लड़कियां 1, 2 या 3 सेशंस में पूरी बातें या चीजें हमें बता सकती है। लेकिन लड़कों के साथ अगर ये ऐसा कोई किस्सा है और हमें काउंसलिंग करना है, तो जो है वो बहुत देर लगती है ये सारी चीजें हमसे शेयर करने में उनको। तो यही शायद रीजन है, इसीलिए भी ये केसेस ज्यादा रजिस्टर नहीं होते, इसीलिए हमें लगता है कि लड़कियों के साथ ही सिर्फ होता है। दूसरा ये है कि ये सिर्फ गरीब झोपड़ी में या बस्ती में रहने वाले बच्चों के साथ ही अब्यूज हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी कम्युनिटी या कोई भी जो लोग है, ये मेरे और आपके घर के बच्चों के साथ भी हो सकता है ना। ये इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा लिखा नहीं है कि इनके साथ ही ये अब्यूज हो सकता है, किसी के साथ भी ये सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। आगे का मुद्दा ये है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं, जो एकदम प्रिटी दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखती है बच्चियां, उनके साथ ही ये अब्यूज होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। कई बार ये भी है कि हमने देखा है कि जो देखने में सो है या नॉर्मल है, उन बच्चों के साथ भी ये अब्यूज होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे जो अब्यूजर होता है उनके जो इमोशनल फीलिंग्स होती है उनका वो गैर फायदा उठा के भी उनके साथ अब्यूज करता है। और कई बार ये भी आता है कि सिर्फ टीनेज बच्चों के साथ ही अब्यूज हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत हम सोच जो है वो गलत रख रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना, मैंने ही एक केस डील किया था जिसमें सिर्फ 14 महीने की बच्ची के साथ अब्यूज हुआ था उसके साथ, है ना। तो ये कोई भी एज के, उम्र के, कोई भी धर्म के, कोई भी ज्ञाति के, कोई भी घर में रहने वाले बच्चे के साथ अब्यूज हो सकता है। हमने हाईवे मूवी देखा ही होगा। तो ये एक एग्जांपल के लिए मैं जस्ट यहाँ शेयर कर रही हूँ। दर्शन भाई। Thank you. So I think we have got the basic idea about what is child abuse and what are the types of abuse, what are the myths about the child abuse. Moving forward, I think we should show that Komal video which has been created by Childline, which basically clears the basic myths and primarily gives idea to the kids that what is child abuse and what are the things you should keep in mind. So if I can request my IT team to play that video, please. It's a 10-minute video. कोमल, बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल,
अंकल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। हे, कुमार। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि
क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। Thank you. Binal Ben, your thoughts on the video, and I think you would like to show something. यस बच्चों, आपने सभी ने ये मूवी देखा ही होगा और मैंने जो उत्तम भाई ने हमने जो बात रखी यहाँ पे,
वो इस वीडियो ने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है ना। तो अभी हम लोग आगे जो मेरी बात जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं ये बता रही हूँ कि हमारे बॉडी में ऐसे 4 जगह है जहाँ पे हमें कोई भी छू नहीं सकता है ना। तो वो 4 जगह कौन सी है उस वीडियो में हमें प्रॉपरली दिखाया गया। तो हम 4 स्टेप के बारे में आज बात करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हमें पहचानना है अगर हमारे साथ कोई जो है वो हमें अनसेफ टच करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें अनसेफ फील होता है टच करता है तो वो उसको पहचानना है। तो वो कौन सी जगह है, जैसे कि मुंह, छाती का भाग, आगे का भाग, नीचे आगे का भाग और पीठ के पीछे पीछे का भाग। तो ये 4 जगह ऐसी है जहां पे हमें कोई भी छू नहीं सकता है और हम भी किसी को वहां पे छू नहीं सकता है, क्योंकि ये अगर हम वहां पे छूते हैं तो हमें अनसेफ फील होता है ना। तो इसीलिए तो पहला ये है कि हमें उसको पहचानना है। दूसरी बात, अगर हमें लगता है कि नहीं ये अनसेफ टच है, अगर हमने उसको पहचान लिया, अगर कोई हमें ऐसा अनसेफ टच करने की कोशिश कर रहा है और हमने पहचान लिया, तो हमें जोर से उसी जगह पे जोर से हमारे में जितनी भी एनर्जी है उतनी जोर से चिल्लाना है। नो, नहीं, ना, जो भी आपको आता है उतनी जोर से चिल्लाना है कि आसपास के अगर कोई दूर दूर भी है तो उनको सुनाई दे, है ना। तीसरा स्टेप कि वहां से आपको भाग जाना है। अगर आप घर में हो तो मम्मी है उसके पास, अगर आप बाहर खेल रहे हो, नीचे खेल रहे हो, तो बहुत सारे बड़े लोग जहाँ पे बैठे हैं उनके पास पहुंच जाना है। अगर हम और कोई अननोन प्लेसेस पे है तो जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो वहां पे आपको पहुंच जाना है। तो वैसे ही आपको वहां से जितनी एनर्जी आपके पास है वो लगा के वहां से भाग जाना है। और चौथा स्टेप है कि जो भी आसपास है उनको बता देना है ना। तो इसमें बताया गया कि हमें बताना है, तो हम किन किन लोगों को, अगर हमारे साथ ऐसा अनसेफ टच होता है तो हम किन लोगों को बता सकते हैं। तो अभी मैं आप सबको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, है ना। आप सभी के पास एक पेपर और पेन होगा, मैं ऐसा समझ रही हूँ। हाँ, अगर नहीं भी है तो आप ये सेशन खत्म होने के बाद भी आप ये एक्टिविटी अपने आप अपने घर पे कर लीजिएगा। तो एक पेपर लेना है और इस Binal एक Ben, पेपर में Binal Ben, Sorry? I think I would request our IT team to share this picture. They have arranged ये it. मैं दिखा रही हूँ उन Okay, बच्चों को, sure. तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। Okay. ये एक पेपर पे मैंने एक पिक्चर जो ड्रॉ किया है उसमें मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है। तो उस फ्लावर का नाम मैंने हेल्पिंग हैंड्स रखा है, माय हेल्पिंग हैंड, है ना। तो मुझे मदद करने वाले कितने लोग हैं उसको मुझे पहचान के यहाँ पे लिखना है। तो ये जो एक एक में मैंने आपकी मदद कर दी है, जिसमें मैंने 1098 नंबर, 100 नंबर्स और 181 जो गवर्नमेंट की अलग अलग हेल्पलाइन है जो बच्चों को मदद कर सकती है इस मुद्दे में, ऐसे इन लोगों के नंबर्स, ऐसी हेल्पलाइन के नंबर्स मैंने डाल दिए हैं। लेकिन बाकी की जो जगह है वहां पे, जैसे कि ये है, तो बाकी की जो सारी जगह है वहां पे आपको आज ऐसा सोचना है कि आपकी बात कौन बहुत ध्यान से सुनता है, आपको कौन बहुत प्यार करता है और आपकी हर एक चीज, हर एक बात उनको पता रहती है। उनका आपके साथ जो शेयरिंग करता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है और आपकी बातों को जो समझता है, ऐसे कौन लोग आपके आसपास है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या आपके जो अगर हॉबीज अदर अदर हॉबीज के टीचर्स है वो भी हो सकते हैं। आपके घर में काम करने आ रहे कोई है तो वो केयर टेकर्स भी हो सकते हैं, या वो लिफ्टमैन भी हो सकते हैं, या वो फिर अपने सोसाइटी के वॉचमैन भी हो सकते हैं। कोई भी जो ये आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और जो है वो आपको बहुत अच्छा फील करवाते हैं। तो वैसे कौन लोग हैं उसमें से आपको आइडेंटिफाई करके उनके नाम और उनके फोन नंबर आज इसमें लिखना है ना। और आज की एक्टिविटी खत्म हो जाने के बाद ये आप कर लो, तो आज के दिन में उनको आपको फोन करके, ईमेल करके, वीडियो कॉलिंग करके या लेटर लिख के आपको उनको कहना है कि आप उनके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। और अगर मैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में आऊंगा या आऊंगी तब मैं आपको कॉल करके या आपको मिलके या कुछ भी करके बताऊंगी, है ना। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। ये हमारी हेल्पिंग हैंड्स है ना। कभी भी हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो ये सिस्टम,
ये हमारा सिस्टम, ये हमारा फ्लावर्स हमें हेल्प करने के लिए रेडी होगा। तो इसीलिए आज हमें ये करना है सभी को, ये एक्टिविटी खत्म, ये हमारा सेशन खत्म हो जाने के बाद, है ना। और आपको ये खत्म हो जाने के बाद अपने पेरेंट्स को दिखाना है, बराबर। आप सब करोगे ये, और ये फिर टीचर्स को भी आप शेयर करना कि आपने इसमें क्या किया है, बराबर। ओके दर्शन भाई, तो ये एक्टिविटी आज हमारे बच्चे जो है वो करेंगे और उनको पेरेंट्स को, टीचर को दिखाएंगे। और सबको मैंने होमवर्क दिया है कि इनमें जिसके नाम वो आज लिखेंगे उनको फोन करके, ईमेल करके या लेटर लिख के, कुछ भी वीडियो कॉल करके भी आपको उनको बताना है कि ये पर्सन आप जो है वो मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जिसको मैं कभी भी ट्रबल में आऊंगी या आऊंगा तब मैं आपकी मदद लूंगा, है ना। तो ये आपको आज करना। दर्शन भाई। Thank you, madam. Now, thank you for the amazing task, and I would request all the parents to get this done from your kids. Binal, what are the signs or symptoms of child abuse? If you can throw some light, how parents can identify that there is something wrong going on. I think you need to unmute. दर्शन भाई, मुझे लगता है कि आज बच्चे भी साथ में हैं और बच्चे भी ये सारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं ये पर्सनली पेरेंट्स को शेयर करूंगी। Fine, I'll skip that question. Okay. Now moving forward, I would request Mini Madam to address this. What can I do if I suspect child abuse, and how do I report child abuse to the authority? थैंक यू दर्शन भाई। सबसे पहले जैसे मैं बच्चों को भी और बड़ों को भी कहना चाहूंगी कि जो हेल्पिंग हैंड का जो फ्लावर दिखाया बिनल जी ने, तो उसमें उन्होंने एक ऑलरेडी उन्होंने दिखा दिया है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। तो उसमें मैं नेक्स्ट टाइम ये चाहूंगी बिनल बेन उसमें एक और ऐड कर दे, हमेशा 100, तो वो भी आपके लिए 100, हाँ वो होना ही चाहिए। बच्चे को भी ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो बहुत सारे बच्चे अभी हमको सुन रहे हैं, वो मैं थोड़ा एक ये चीज अलग से कहूंगी। एक चीज जो मम्मी पापा ने हमेशा आपको बचपन से सिखाया है या आपके दिमाग में डाला है कि ये मत करो वरना पुलिस ले जाएगी, वो मत करो या वरना पुलिस ले जाएगी, ये तुमने गलत किया है या तुम जिद कर रहे हो तो पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो इन चीजों से आपको अभी तक डराया हुआ है, तो वो मैं बच्चों को ये क्लियर करना चाहूंगी एज ए पुलिस ऑफिसर कि आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये बात डालिए, जो गलत काम करता है, जो चोरी करता है, जो मारपीट करता है, पुलिस उनको ही ले जाती है, बाकी लोगों को पुलिस मदद के लिए होती है, फिर वो बच्चा हो या बड़ा हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप खाना नहीं खा रहे हो और मम्मी पापा बोले कि जल्दी खाओ तो आपको पुलिस लेके जाएगी, तो ये मत सुनना, ये मत समझना, लेकिन ये दिमाग में जरूर रखना कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप पुलिस बन नहीं पाओगे। इसलिए पापा मम्मी की बातें अच्छे से सुनना है, उसके पीछे लॉजिक दौड़ाना है। वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि बच्चे यही कहते हैं कुछ टाइम के बाद, आई थिंक 9 to 12 क्लास के बच्चे हैं ना, between 7 to 14 एज, मोस्टली 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। ओके, 6th और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो जब भी वो लोग हम अभी तो ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो 7 to 14 ईयर्स जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, कभी कभी ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते भी अपने दोस्तों को चैट करके मतलब बात करते हैं। हम लोग बेंच टू बेंच बात करते थे, लेकिन अभी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हुए भी एक दूसरे से चैट करके बात करते हैं और उनको ये लगता है कि मम्मी पापा को समझ में नहीं आता है, हम लोग चोरी कर लेते हैं। तो इन चीजों से बच्चों को इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में अभी मैंने बोला उसी तरह 100 नंबर की आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जैसे सस्पेक्ट, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ जो भी गलत काम करता है, ऐसा कोई भी सस्पेक्ट आपको पता चलता है, वो किसी को भी पता चल सकता है, बच्चों को भी पता लग सकता है,
हो सकता है मेरे दोस्त के साथ ये चीजें हो रही हो और मुझे मेरे दोस्त ने बोला हो, कभी रोता हो, सुना हो, और उससे जब हमने बोला कि क्या हुआ मेरे दोस्त, तू मुझे बताओ, और आपके दोस्त ने आपको ये बताया है, तो आप सबसे पहले अपने जैसे हेल्पिंग हैंड है उनसे बात कीजिए कि मम्मी या टीचर, मेरे एक दोस्त के साथ ये हो रहा है, और आप उसको 100 नंबर पर भी कॉल करके बता सकते हो। और अगर आप चाहोगे तो आपका नाम भी हमें 100% गुप्त रखना है। अगर कोई बच्चा हमें जानकारी देता है तो आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे, हम उसको सीक्रेट ही रखते हैं। ये फिर आपके और हमारे बीच का सीक्रेट होता है, वो किसी और को पता नहीं चलता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द, अब ये माँ बाप के लिए है, इर्द गिर्द आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ ये चीजें हो रही है, तो ये माँ बाप को मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि हमारे किसी आसपास किसी बच्चे के साथ ये हो रहा है और हमें बोलना नहीं है, ये हमारे बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, अभी हमें कोई पड़ी नहीं है, तो इसके लिए 6 मंथ की सजा है। मतलब किसी बच्चे के साथ अगर कोई एब्यूजिव कोई भी क्रिया करता है या कोई भी हरकत करता है, और अगर आपको पता होते हुए भी आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, और ये डिक्लेयर कभी भी हुआ कि आपको ये चीजें पता थी, तो आपको भी बिना बताए आपको इसकी 6 महीने की सजा हो सकती है। ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चे भी कभी भी ऐसी कोई चीजें आपको पता चले तो 100 नंबर पर, या बड़े भी 100 नंबर पर ये बात बता सकते हैं। हाँ, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ये हमारी गारंटी है, और ये कायदे में भी यही प्रोविजन, एज पर लॉ में भी यही प्रोविजन है कि इसको जिसने भी डिस्क्लोज किया है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये एक चीज है कि आप 100 नंबर पे कहीं पे भी फोन कीजिए या 1098 पे फोन कीजिए, और जैसे एक महिला हेल्पलाइन है 181 है, उसमें भी आप फोन कर सकते हैं और ये चीजें बता सकते हैं। वो चीजें जहां पे भी पहुंचनी है वो वहां पहुंच जाएगी, और उसके खिलाफ जो भी एज पर लॉ है उसमें कार्यवाही हो सकती है। Thank you, madam. And madam, as you rightly mentioned कि क्या-क्या आप सुविधाएं देते हैं और किस तरह से गोपनीय रखी जाती है सारी माहिती. How does the law support the victim? As you have already mentioned, but during the course of such event, report करने के बाद में किस तरह से आप support करते हैं? बिल्कुल, उसमें बहुत सारी प्रोविजन ये भी है कि बच्चों का जो भी, अगर बच्चे और जो भी बच्चा इसका शिकार बनता है या जो भी बच्चा इसका भोग बनता है, उस बच्चे की नाम एक तो गोपनीय रखना सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर माँ बाप या बच्चे पुलिस स्टेशन में नहीं आना चाहते हैं और वो खुद को जहाँ पे भी कंफर्ट फील करते हैं, ये वो अपना घर भी हो सकता है या कहीं और थर्ड प्लेस भी हो सकता है, वहां आके पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन या जो भी पूछपरछ है, जो भी इंक्वायरी है वो करती है। दूसरी चीज ये है कि पुलिस हमेशा आपके पास सिविल ड्रेस में आएगी और ना ही सरकारी गाड़ी में आएगी, वो सिविल ड्रेस में प्राइवेट गाड़ी में आएगी, ताकि आप कहीं पे भी डिस्क्लोज ना हो। अगर आपके घर पे भी पुलिस आती है तो वो सिविल ड्रेस में आएगी और नॉन सिविल गाड़ी में ही आएगी, ताकि आसपास किसी को पता ना चले कि पुलिस ऐसी कोई प्रोसीजर कर रही है और आपका नाम डिस्क्लोज ना हो। और बच्चों के लिए, अगर बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कोई हो सकता है कुछ स्पेशल बच्चे हों तो वो अपनी भाषा में बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो हमें ये भी प्रोविजन है कि अगर वो बच्चा बोल नहीं सकता तो जो भी इंटरप्रेटर है जो इशारों की भाषा समझ सकता है, वो उनको हम बीच में रखते हैं, मतलब एज ए ट्रांसलेटर। अगर हमें यहाँ गुजरात में कहीं तमिलनाडु का बच्चा मिल गया तो तमिल जिस इंसान को तमिल और गुजराती दोनों आती है, ऐसे इंटरप्रेटर को भी हम साथ में रखते हैं। दूसरी चीजें, बहुत सारी एनजीओ है या फिर हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, हमने बच्चों की जो भी पूछपरछ है इंक्वायरी में, एज ए थर्ड पर्सन हम लोग एनजीओ को भी साथ में रखते हैं, और इन बच्चों की पूछपरछ हमेशा एज ए लेडी ऑफिसर के साथ ही की जाती है। अगर ज्यादातर हमारे जैसे एक
बिलीव्स है, डिसबिलीव्स की लड़की है तो वो कैसे बताएगी, वो सारी चीजों के लिए हम लोग अगर लड़की एज ए गर्ल है तो वो अगर लेडीज के बीच में कंफर्टेबल है तो हम लेडीज ऑफिसर रखना हमारे लिए कंपलसरी है। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जो एज पर पॉक्सो के तौर पर ये चीजें कंपलसरी होती है, ताकि बच्चा खुल के बोले, हम पे भरोसा करके सारी चीजें बताए और उन लोगों के सभी के नाम बताए जिनके साथ इन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने इनके साथ ये गंदा बर्ताव किया है। Yes, thank you, madam. So, as rightly mentioned, the problem lies, एक तो awareness नहीं है और दूसरा ये है कि after having the awareness, there is no courage or maybe there are some reservations about getting out of the closed doors और इसको किस तरह से report करना चाहिए. So, madam, would you like to add anything else? Are we missing on something which you would like to mention here? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं या बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं 7-8 साल का बच्चा हो जिनके साथ ये चीजें हो जाती है, उसकी अभी जैसे लड़की है तो उसकी 7-8 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है, उसकी करंट मानसिक परिस्थिति के बारे में वो नहीं सोचते हैं। वो 18 साल की होगी तो उससे शादी कोई नहीं करेगा, ये सोचकर ऐसी रजिस्ट्रेशन से वो लोग कतराते हैं कि मेरी बच्ची का नाम जाहिर हो जाएगा, मतलब डिस्क्लोज हो जाएगा तो उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अगर बच्चे अभी इस कंडीशन में मेंटल हेल्थ से टोटली हेल्दी होके निकलेंगे तब वो शादी तक वो सरवाइव कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इनका इफेक्ट इतना गंदा सा होता है कि वो बच्चे खुद भी कभी एज ए एडल्ट के तौर पर वो खुद भी दूसरे बच्चों के साथ यही हरकत करने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ हर बार हुआ है तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है तो वो बच्चे उसको ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। कोई भी इंसान करे ये नॉर्मल नहीं है। मुझे अगर आज मेरे मम्मी पापा अगर मारते हैं तो ये नॉर्मल है, यही सोचकर आप अपने बच्चों को मारोगे तो वो जो दर्द आपको हुआ है वो आपके बच्चों को भी होगा, ये अभी के बच्चों को याद रखना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर वो चीज हमें माँ बाप को ये समझनी चाहिए कि हम जिस चीज को नॉर्मल समझेंगे लेंगे, बच्चे कल उसी चीज को नॉर्मल लेंगे। Thank you, madam. Thank you. Pinal Ben, I would request you to guide us on by what age kids should be sensitized about these issues and कब से ये education start करना चाहिए? दर्शन भाई, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि हम बहुत ही छोटी उम्र के बच्चों से भी ये अवेयरनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे विनय मैम ने बताया ये कि कहीं पे भी अब्यूजर कौन है ये नहीं पता है ना, लिखा नहीं उसके चेहरे पे। तो अभी तो क्या है कि बच्चे बहुत ही उनको अदर अदर एक्टिविटी में जाना है, बाहर निकलना है, हर ऐसी जगह पे जाना है, तो हम सभी जगह तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे एज अ पेरेंट्स। तो इसीलिए बच्चे को हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब्यूजर कौन है वो हमें पता नहीं। तो बच्चे अगर इससे अवेयर रहेंगे कि कैसे बचना है तो शायद ये बच्चों के साथ कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा और बच्चों को ही एजुकेट करना पड़ेगा कि इसको अब्यूज कहा जाता है और इससे हमें बचना है। और जैसे बताया था आगे, वो 4 स्टेप याद रखने हैं और उसमें बच्चा 3-4 साल से छोटा जब होता है तब से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चे को हमें हर बॉडी पार्ट के काम क्या है, वर्क क्या करते हैं, उसके बारे में पहले हमें बताना चाहिए कि आंखें हैं तो देखने का काम करती है, तो वैसे प्राइवेट पार्ट के काम क्या है। जब बच्चे हैं तो उनकी लैंग्वेज में जाके वो जो समझ सकते हैं उसी तरह हमें उनको समझाना पड़ेगा। और दूसरे की बच्चे को हम ये बातें स्पेशली नहलाते टाइम, जब तक 7-8 साल तक का बच्चा होगा तब तक हम पेरेंट्स जो स्पेशली मम्मीज है वो नहलाती है बच्चों को, तो तब हम बच्चों को ये स्पेशली अगर उस टाइम पे बात करेंगे तो बच्चों को बहुत याद रहेगा। और छोटे बच्चे हैं, अगर ये 3 से 5 या 6 साल के बच्चे हैं तो उनको हर 6 महीने में ये रिपीट करवाना है कि बेटा आप बताओ कि आपकी बॉडी के कौन से रेड जोन है, कौन से प्राइवेट पार्ट है जहाँ पे आपको कोई टच नहीं कर सकता है। तो वैसे हमें रिपीटेडली टिल 6 इयर्स हमें बच्चों को ये याद करवाना पड़ेगा
तो ऐसे हम अर्ली एज से शुरू कर सकते हैं बच्चों को ये अवेयर करने की बारे में। दर्शन भाई। Thank you, madam. Uttam bhai, if I can request you, any specific safety rules you would like to share with the kids, and Okay. how they should be prepared? Okay. Before coming to the safety rules, माहौल बहुत गर्म हो गया होगा, टेंस हो गया होगा, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि नथिंग टू वरी, सिर्फ हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। आज की तारीख में जो ये आपको मैसेज इस सेशन के द्वारा मिल रहा है, तो बस उस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बताता हूँ आपको, कि हर एक टच बुरा नहीं होता है, वो ध्यान रखिए, है ना। आपके डैडी या मम्मी आपको हग करते हैं, या आपके ब्रदर्स आपको या सिस्टर आपको हग करते हैं, सो दैट इज नॉट अ बैड टच। तो मतलब हर टच को उस एंगल से मत सोचना कि ये मेरे साथ गलत हुआ है ना। ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने हमको फोन करके बताया, उसकी स्कूल में ट्रेनिंग दी थी, तो उस छोटी सी बच्ची ने फोन करके बोला कि आज जब मैं खेल रही थी ना रिसेस में, तो मेरे साथ में एक लड़का था, वो उसका हाथ मेरे चेस्ट पे लग गया, तो दैट इज अ बैड टच। सो ये हमारे दिमाग में इंप्रेशन नहीं होनी चाहिए कि हर एक टच बैड टच है ना। वो हमें पता चलेगा अपने आप कि हाँ कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि यू शुड नो दैट यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के आप बॉस हो और कोई बॉस नहीं है, वो बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो और सबको बता के रखो। फाइन। जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखते हैं, हाइजीन, हम नहा धो के एकदम फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सो दैट हमारी बॉडी अच्छी रहे, है ना। हम बॉडी का ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि कई बार रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की केयर करके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, है ना, अपनी बॉडी का। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल में जब आप खेलते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको इस तरह से कभी धक्का दे दिया कि जिससे आप हर्ट हो जाओगे, तो अगेन वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है ना उसमें। तो उस टाइम पे आपको जोर से उसे नो बोलना है, बिकॉज वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। इसी तरह से कभी भी आपकी बॉडी को कोई हार्म करने की कोशिश करे तो उसे जोर से मना करना है, बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी। सेकेंडली, मैं पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करूंगा कि हमारे यहाँ घर पे जैसे गेस्ट आते हैं ना, तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि चलो बेटा किस दो, हक दो अंकल को। वो सिस्टम हम बंद करें, है ना। कितने भी क्लोज हो, बच्चों को आप ऑप्शन दे सकते हैं कि बेटा हाई फाई करेंगे, हग करेंगे अंकल को, तो मे बी वो बच्चा अगर उसे हग नहीं करना है तो हाई फाई देके निकल जाएगा। तो बच्चों को वो फोर्स न किया जाए कि आपको उस अंकल को हग देना है, आंटी को हग देना है या किस करना है। लेट अस अवॉइड दैट। सेकेंडली होता है कि हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत शर्म से बच्चों से बात करते हैं, बॉडी पार्ट्स का नाम लेने में शर्माते हैं। आप हाथ का नाम ले लेते हैं कि नी का नाम ले लिया, कोहनी का नाम ले लिया, लेकिन जब वो स्पेसिफिक प्राइवेट पार्ट्स की बात आती है तो आप उनको कुछ अलग नाम दे देते हैं, है ना। हर एक पेरेंट ऐसा करता है। तो जब बच्चा ये देखता है कि मेरे पेरेंट्स भी शर्मा रहे हैं उस बॉडी पार्ट का, बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा ना कि यार ये तो एक्चुअल तो पार्ट ये है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा सिखाया है। तो वो एक मैसेज भी नहीं जाना चाहिए बच्चों को। आपको अगर शर्म आ रही है तो आप एक बुक लेके, जो जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स हों, उनके नाम लिखे हो, वो बुक लेके बच्चों को समझा दीजिए कि ये दीज आर द बॉडी पार्ट्स, इनको ये कहा जाता है ना। डॉक्टर के पास बच्चा जब जाता है तो उसे पता होना चाहिए कि दीज आर माय बॉडी पार्ट्स। तो ये पेरेंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, बच्चों को मैं बोलूंगा कि मैं रिपीट करता हूँ जो मूवी के अंदर देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, बिल्कुल क्लियर कट बैठ जाना चाहिए कि इट इज नॉट ओके टू टच समवन एल्सेस बॉडी पार्ट्स। जो प्राइवेट पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ओके फॉर अस आल्सो, हमें भी किसी के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच नहीं करना है ना। सेकंड इज, इट इज नॉट ओके फॉर समवन टू टच हिज और हर ओन प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। आपके सामने कोई अपने बॉडी पार्ट्स को भी टच नहीं करना चाहिए, राइट। इट इज नॉट ओके फॉर समवन टू आस्क यू टू टच। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच करो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर। कोई ऐसा बोलता है कि आप, मतलब वो अपने कपड़े आपके सामने उतारे, या आपको बोलता है कि आप कपड़े उतारिए, है ना, एक्सेप्ट कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दोज आर मेडिकल कंडीशन जहां आप शायद बीमार हैं, तो लेकिन वो भी पेरेंट्स के सामने। डॉक्टर अगर आपको बोलता है तो योर पेरेंट शुड बी विथ यू, उस कंडीशन में इट इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओके। फाइन। या मम्मी आपको नहला रही है, घर में हो, देन इट्स ओके, बट बाहर वालों के सामने बिल्कुल नहीं। And it is not okay for someone to take photos or videos of you.
अगर आपके कपड़े उतार के कोई फोटोज या वीडियोस लेना चाहे तो वो भी बिल्कुल नहीं। तो इन सब चीजों के अंदर यू शुड बी वेरी स्ट्रांग टू से नो, बिकॉज एज आई सेड कि यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कोई टेंशन नहीं होगा। एंड ट्राई टू हेल्प, जैसे आपको बताया गया कि भाई किसी और के साथ कुछ अब्यूज हो रहा है तो हमें चुप नहीं रहना है, बी द लीडर, स्प्रेड दिस मैसेज, है ना। किसी को भी हेल्प करना चाहिए हमें, और हमें पता चलता है तो डेफिनेटली उसके साथ खड़े रहना चाहिए। दैट्स इट दर्शन भाई, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts on this. And going forward, I would like to share all the links of a Komal video which has been created in 13 different languages. तो उसका जो link है that I will be sharing on the chat box for your later viewing purpose. Moving forward, I think we are done with all the basic questions. Since we have a few minutes, can we take some questions? If there are any questions, you can just type your questions in the question and answer box. And I would request Krunal to please go ahead with the vote of thanks. Do we have Dhruv here? Dhruv, are you available? Yes. Yes, Dhruv. So I think I would hand over to you, please. So thank you so much, everyone. Since I got with some travel, please bear with my network coverage. So first of all, thank you. Tried and made sure to attend this event regarding child protection and family support. Thank you, parents who I think Dhruv's network is not quite stable, so we'll and also were available for this. Uttam bhai for supporting are a great value for us, and as a moderator, or is it fine, Darshan? Thank you, Dhruv. Yeah. I would request Krunal to please go ahead with the vote of thanks, please. Okay, thank you, Darshan. So first of all, I would like to thank each and everyone who has been participated in this session, and we are very much motivated to see a lot of participation for this particular session. First of all, I also would like to thank Mini ma'am, the ACP from Mahila Cell, who always a phone call away whenever we, as a team Project Masoom, would like to have their time in any of a different sessions. So, and she is always available to support us in our Project Masoom. So I would like to thank Mini Joseph madam for this. At the same time, I also thank Uttam bhai from Times Foundation. They are associated with us for such a long period and helping us in spreading the words about the different things, as well as Uttam bhai is also helping us in training giving the training to the teachers of different schools, and he always motivate us for something new, what next we can do as far as the Project Masoom is concerned for the child safety. I would also like to thank Binal Ben, because Binal Ben is also is a chain between this, because we got a very different angle when we want to understand about the psychology of a child. She always been giving us a lot of insights about how child think about it, and how to give the response to that particular thing, and giving those kind of an guidance to us is very helpful for us to design a different projects under this banner. I would also like to thank our YI Ahmedabad chair Dhruv Desai, who always been back of our
support for any kind of an support we need to organize this kind of an event. Also, I would like to thank Tejas Bhai of co-chair of YI Ahmedabad, who help us in a lot of other activities for promoting the Project Masoom and giving the visibility of this Project Masoom. For this particular session, I would like to thank the management of Kellogg's Group and especially the principal of DPS Bhopal for allowing us to conduct this session for the students and the parents, because this kind of, we always try to spread the awareness about the child safety to a lot of, so we want to expand at a very, very extreme level, and helping us in arranging this particular session. It is very much meaningful for us for spreading the awareness about the child safety. Last but not the least, I would like to thank all the parents and the students who feel that this is important for an individual. So sparing your time for knowing this, and this is something which also keeps us motivating, because when the participations are good, it always gives us a motivation to do more and to reach out to more and more students and the parents for awareness of child abuse. And at the last, thank you, Darshan, for being a fantastic moderator of this particular session. And we look forward for a lot of more sessions from with DPS as well as other schools as well. Over to you, Darshan. Thank you, Kunal. I think Darshan bhai, I'll just would sure. like to mention one name. Special thanks to Unmesh bhai, who sort of made sure that this event goes seamlessly. So I think kudos to Unmesh bhai as well. Over to you, Darshan. Yes. Thank you, Dhruv. Thank you, Kunal, for quickly briefing this, and I think we can end the session. दर्शन जी, दर्शन Yes, madam. Yes, madam. किसी युवराज ने हैंड्स अप किया हुआ है, कुछ पूछना है शायद. अच्छा, युवराज ने हैंड रेज किया है, so I'm not able to view this. Can he speak or can he share the question over chat box? Madam, I have just messaged Yuvraj to share his question, because I think he will not be able to speak here in this setup. Yes. So I think, should we wait for his question, or should we conclude the session and get in touch with him separately? So I think we request the principal or any of the teacher from the DPS school to collect this question, and we can offline then answer those particular questions to all the students or the parents if they have. Okay. So minimum, I think we'll try to get the question offline, as we will be ending the session. No issue, no issue. Okay. Thank you, madam, once again for your presence and sparing the time for us. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. We can end the session. Yeah. Thank you.